یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ قربانی خدا کا فرمان یا مولاناؤں کی سازش؟ آخر کیا اتہاس ہے قربانی کا اور کیا رشتہ ہے اس کا باقی ابراہمک مذہبوں سے؟ آخر کیوں اسلام سے پہلے کے ابراہمک مذہبوں میں قربانی نہیں ہوتی جبکہ اسلام میں یہ فرض نہ ہوتے ہوئے بھی فرض دکھائی دیتی ہے اور لگ بھگ پوری مسلم قوم اسے کرتی ہے؟ اور آخر کیوں محمد صاحب نے ابراہم کے بیٹے اسحاق کی قربانی کی کہانی میں فیر بدل کر کے اس کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو ڈالا؟ تفصیل سے جانیں گے آج کی اسپیشل ویڈیو میں، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ نہ تو ان کا خون اور نہ ہی ماंس اللہ تک پہنچتا ہے، پہنچتی ہے تو تمہاری بندگی یعنی آگیا پالن۔ اللہ نے جانوروں کو یوں تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو اور نیک لوگوں کو آنے والی زندگی کی خوشخبری دو۔ کیا یہ لفظ کسی خدا کے لگتے ہیں؟ دھیان سے دیکھا جائے تو اللہ خود بھی مان رہا ہے کہ جانوروں کا خون بہانے سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا، مگر وہ تم سے ایسا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اس نے تم کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ حکم دے سکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کے حکم کو مان رہا ہے یا نہیں، کہ وہ اس کے لیے کسی معصوم جانور کی جان لے لے اور پھر ہر سال یہی کروائے؟ جانوروں کو اس نے انسانوں کے قابو میں اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اس کی تعریف کرے۔ واہ تعریف کے بھوکے خدا واہ! 70 ماؤں جتنا چاہنے والا خدا ایسا ہی ہے، لیکن دنیا کی ایک ماں بھی ایسی نہیں ملے گی۔ یہ سب باتیں کچھ سوال چھوڑ کر جاتی ہیں جن کا جواب خدا نہیں دیتا۔ آخر جانور کو مار کر خدا کو کیا ملے گا جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ اس کو نہ ماंس ملتا ہے اور نہ خون، اس کو ملتی ہے کیول بندگی۔ بندگی کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ہے بھی تو بندگی پانے کا یہ طریقہ خون سے سنا ہوا کیوں ہے؟ کچھ اور طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ خدا تعریف کا اتنا بھوکا کیوں ہے؟ آخر یہ قربانی فرض نہ ہو کر بھی اتنی ضروری کیوں ہے؟ خدا نے اگر پہلے والی قوموں کو بھی قربانی کرنے کو کہا تھا تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ بھلے خدا نے ان سوالوں کے جواب نہ دیے ہوں، لیکن میں ضرور ان کے جواب دے سکتا ہوں۔ تو آئیے ان سبھی سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ڈھونڈتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں قربانی کا اتہاس۔ قربانی کا اتہاس۔ ہر سال صرف قربانی ہی نہیں کی جاتی بلکہ ایمان والوں کو ہر سال یہ روحانی قصہ بھی سنایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں اللہ دوارا اس کے بیٹے اسماعیل کی بلی مانگی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اللہ ابراہیم سے اسے اللہ کا سچا بندہ ثابت کرنے کا یہ چیلنج دیتا ہے۔ یا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا کہ اللہ نے ابراہیم کو اس کا ایمان پرکھنے کا امتحان مانگ لیا۔ یہ بات ابراہیم نے صبح اپنے بیٹے اسماعیل سے کہی، تب وہ بھی خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح مینا میدان میں قربانی گاہ میں اسماعیل کو لٹا دیا جاتا ہے اور ابراہیم اپنی آنکھوں پر ایک کپڑا باندھ لیتا ہے جس سے کہ بیٹے کو قتل کرتے وقت اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ جب پہلی بار چھری چلاتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی اور چھری کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ دوسری بار میں وہ چھری چلاتا ہے اور چھری چل جاتی ہے۔ یہ ڈر کے مارے ایک دم سے آنکھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھتا ہے تو اسماعیل ایک طرف کھڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ جبرائیل جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس نے ایک جنتی جانور دمبا وہاں پر لٹا دیا جو کہ اللہ کی راہ میں ابراہیم کے ہاتھ سے قربان ہو جاتا ہے۔
یہ دیکھ کر ابراہیم چونک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، جس پر اللہ دوارا بھیجا گیا فرشتہ جبرائیل ابراہیم کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان تھا اور تم امتحان میں فرسٹ کلاس پاس ہو گئے، مطلب کہ تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم کتنے بڑے سائیکو کریکٹر ہو، بالکل اللہ کی طرح۔ اس کے بعد ابراہیم نے اللہ کے کہے مطابق اس جانور کے 3 حصے کیے، جن میں سے ایک حصہ خود کے لیے، دوسرا پڑوسی کے لیے اور تیسرا رشتہ داروں کے لیے تقسیم فرمایا۔ اس دن کو عید الاضحیٰ کہا جانے لگا اور اسی دن کو مسلمان بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ پر یہ کہانی قرآن میں چوری کر کے لکھی گئی ہے، جو کہ اسلام سے پرانے دھرم، یہودی اور عیسائی مذہب کی کتابوں سے اور سالوں سے چلی آ رہی کہانیوں سے انسپائر ہو کر قرآن میں گڑھی گئی ہے۔ جی ہاں، اصل میں اس زمانے میں مڈل ایسٹ کے لوگوں میں قربانی کرنے کا رواج عام بات تھی۔ قربانی 2 لفظ قبر بانی سے بنا ہے، جو ہبرو بھاشا کا الفاظ ہے۔ اس وقت کے لوگ قربانی کو اور بھی الفاظوں سے جانتے تھے، جیسے قربن یا قربن، جو کہ توحرہ میں ملتا ہے۔ انہی الفاظوں سے قربانی کا لفظ آیا ہے۔ قبر کا مطلب پاس آنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جانور کی بلی دے کر اپنے خدا کے اور قریب جا سکتے تھے، ایسا ان کا ماننا تھا۔ اس وقت میں لوگ ہر چیز کے لیے قربانی دیا کرتے تھے، مثلاً بیمار ہونے پر، کوئی منت مانگنے پر، فصلوں کی کٹائی سے پہلے، فصلوں کی بوائی سے پہلے، اور بھی کئی طریقے کے منت پر یہودی لوگ قربانی دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی پوتر کتاب توحرہ میں آتا ہے کہ ابراہم نے کئی پتھروں کی ویدی بنوائی جس پر لوگ اپنا چڑھاوا چڑھاتے تھے، پر اس میں کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ بعد میں داؤد یعنی کہ ڈیوڈ نے قربانی کا چلن شروع کیا۔ اس کے بعد سلیمان یعنی سولومن نے وہاں پر ایک مندر بنوایا، جس کو یہودی آج سینیگوگ کہتے ہیں، جسے 937 عیسیٰ پورو بنوایا گیا تھا، جو کہ اسلام کے وقت میں نشٹ کر دیا گیا تھا۔ آج اس کے کچھ اوشیش ماتر ہی بچے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کہانی کو مضبوط کرنے والی سب سے بڑی کڑی ہمیں بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ملتی ہے، جہاں پر ابراہم کو پرمیشور سپنے میں آ کر اس کے بیٹے اسحاق کی بلی مانگتے ہیں، جس پر وہ اگلی صبح اٹھ کر اپنے بیٹے کو بلی دینے کے لیے جاتا ہے اور اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ جب ابراہم نے اپنا اکلوتا پتر، اپنا پریہ اکلوتا پتر پرمیشور کو لوٹا دیا۔ ٹپڑی: یہاں پر ہم بھینٹ چڑھا دیا شبد کا پریوگ نہیں کر سکتے، ہمیں کہنا چاہیے کہ اس نے اپنا پتر پرمیشور کو لوٹا دیا۔ تب پرمیشور نے نہ کیول ابراہم کو اسحاق کو بھینٹ نہیں چڑھانے دیا، بلکہ اس نے اسے آشیش بھی دی۔ اب اگر ہم یہاں پر دھیان دیں تو اسلام کی کہانی میں اسماعیل کا ذکر تھا، جبکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کہانی میں ابراہم کے بیٹے اسحاق کی قربانی کا ذکر ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، اور کیونکہ اسلام کے حساب سے پرانے اسکرپچرز کرپٹ ہیں، اس لیے مومنوں کا ماننا ہے کہ وہاں غلط لکھا ہے۔ اسلام میں سب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آخری ابراہمک مذہب ہے، جبکہ سچائی کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اسلام کو ابراہمک مذہب بنانے کا کھیل۔ اصل میں یہودیوں کی پوتر کتاب توحرہ میں ایک آخری نبی کے آنے کی بات لکھی ہوئی ہے، جو یہ ہے کہ اسحاق کی اولاد میں سے ایک آخری نبی آئے گا جو بنی اسرائیل کی نسل یعنی اسرائیل کی اولاد سے ہوگا۔ پر کیونکہ محمد صاحب ایک یہودی سے نکلی جاتی قریش، جو کہ ایک کھانا بدوش قبیلہ تھا، یہاں سے تھے، یہ لوگ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اسی لیے محمد صاحب نے اسحاق کو اسماعیل میں بدل دیا اور خود کو نبی بنا ڈالا یا گھوشت کر دیا، جبکہ پرانا عہد نامہ یعنی توحرہ کے مطابق ابراہم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کے نام پر یہودی دھرم کا نام پڑا، کیونکہ یعقوب کو یہودا بھی کہا جاتا تھا۔ یعقوب نے اس وقت میں 12 جاتیوں کو ملا کر ایک دیش اسرائیل بنایا تھا، جس کا مطلب عبرانی زبان میں ایسا وطن ہوتا ہے جسے خدا کا پیار ملتا ہو۔ اسماعیل کو اسحاق بنانے کی بات محمد صاحب نے لوگوں کو اس لیے بتائی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہودیوں کے مکھیہ نبی ابراہیم کو اسلام میں شامل کر لوں تو یہ سب میری بات ماننا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے مکہ میں
कुछ आयतें भी उतारी, जिसमें सूरह हज की 34वीं, 37वीं और सूरह सफात की सूरा भी शामिल है। पहले जमाने में अपने जानवरों को दो ही वजह से ज़िबा किया जाता था, एक उसका गोश्त खाने के लिए और दूसरा कुछ मजहबों में अपने देवताओं की मूर्ति को जानवर का खून देने का रिवाज था। दरअसल ये समझा जाता था कि ये देवता खून पीते हैं और उससे खुश होते हैं। इसी रिवाज को नबी मोहम्मद ने खूब भुनाने की कोशिश की और आसमान से आयतें उतारना शुरू कर दी। सूरह हज की 34वीं आयत में आता है, और हमने तो हर उम्मत के वास्ते कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चार पाए खुदा ने उन्हें अता किए हैं, उन पर ज़िबा के वक्त खुदा का नाम लें। गरज तुम लोगों का माबूद वही खुदा है, तो उसी के फरमाबरदार बन जाओ। सूरह हज की आयत 37, अल्लाह ने जानवरों को यूं तुम्हारे काबू में कर दिया है, ताकि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह उसकी बढ़ाई करो और नेक लोगों को आने वाली जिंदगी की खुशखबरी दो। सूरह सफात। इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तो तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बू जान, आप जो हुक्म दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जब इब्राहीम ने उनके रब की कई बातों को आजमाया तो उन्होंने उन्हीं आखिरी दर्जे में पूरा कर दिखाया। सलाम हो इब्राहीम पर, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। बेशक इब्राहीम अपनी जगह एक अलग उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार, सब बातिल खुदाओं से कटकर सिर्फ एक अल्लाह के होने वाले थे, और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले हरगिज नहीं थे। तो इस तरह मोहम्मद साहब ने कुरान में ये आयतें बनाकर ना सिर्फ खुद को सच्चा नबी बनाने की कोशिश की, बल्कि अपने कबीले के दावों को भी मजबूत किया कि वो इस्माइल के औलाद से हैं, और इब्राहीम का प्यारा बेटा इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल ही था। इसी हवाले से एक और हिकमत इस हदीस में यूं बयान हुई है, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीका। ईद की कुर्बानी के बारे में उलेमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ इसे वाजिब कहते हैं और कुछ इसे सुन्नत कहते हैं। कुर्बानी को लेकर कुछ हदीसें भी मिलती हैं जो इस तरह हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी 10 साल मदीने में रहे और हर साल कुर्बानी किया करते थे। बुखारी की हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने भी ईद की नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया उसकी कुर्बानी हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत पर अमल कर लिया। बुखारी की एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल 2 मेंढों की कुर्बानी किया करते थे और मैं भी 2 मेंढों की ही कुर्बानी किया करता था। पर यहां पर यह बात समझ नहीं आती कि कुरान में अल्लाह अपने बंदों से यह भी कहता है कि तुम्हारी कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं है, फिर भी लोग कुर्बानी करते हैं। जो आयत वीडियो के शुरू में बताई गई थी, अल्लाह के पास ना तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। हालांकि जो अल्लाह और नबी अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़कर दिखाने के लिए बेताब थे, उन्होंने कभी इसाक की कुर्बानी की कहानी मौजूद होते हुए भी इस तरह की घटिया प्रथा कभी शुरू नहीं की। अब मौलवी दुनिया के इस दावे को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखते हैं। मौलवी दुनिया के मुताबिक कुर्बानी हर साहिब निसाब का फर्ज है, यानी हर उस शख्स पर फर्ज है जिस पर ज़कात फर्ज है। मौलवी दुनिया के मुताबिक साहिब निसाब वो है जिसके पास अपने साल भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 7.5 तोले यानी लगभग 87 ग्राम सोना या 52 तोले यानी लगभग 600 ग्राम चांदी या इतनी ही कीमत का कोई और कारोबारी सामान या नकदी हो। शर्त यह है कि यह बचत उसके पास साल भर रहे। अब आज के वक्त में देखा जाए तो यह फॉर्मूला अपने आप में ही विरोधाभासी है। अगर किसी के पास 80 ग्राम सोना होगा तो आज के सोने के दाम के हिसाब से करीब 4 लाख की बचत के बावजूद उस पर ना तो ज़कात फर्ज होगी और ना ही कुर्बानी। लेकिन अगर किसी के पास 1 किलोग्राम चांदी होगी तो 70,000 रुपए की बचत पर ही उस पर ज़कात और कुर्बानी दोनों फर्ज हो जाते हैं। जब से इस फॉर्मूले पर सवाल उठने शुरू हुए हैं, तब से उलेमा साहिब निसाब के लिए चांदी वाले फार्मूले पर ही जोर देते हैं। यूं तो जानवर की कुर्बानी को पैगंबर हजरत इब्राहीम से जोड़ा जाता है,
लेकिन मौलवी हजरात इसे पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत भी बताते हैं और अपने दावे के पक्ष में कुछ हदीस पेश करते हैं। जमात इस्लाम के संस्थापक मौलाना सैयद अबू आला मौदूदी साहब लिखते हैं, नबी मदीना तैयबा के पूरे ज़माना क़ियाम में हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते रहे और मुसलमानों में आपकी ही सुन्नत से ये तरीका जारी हुआ। इस बात में कोई शक नहीं कि ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया भर में आम मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं ये नबी की ही सुन्नत है। कुर्बानी को लेकर विरोधाभास। एक हदीस के मुताबिक हजरत अनस फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ईद उल अज़हा के दिन हर साल 2 मेंढे, एक काला और एक सफेद, अपने हाथ से ज़िबा करते थे। एक और हदीस में कहा गया है कि हज के मौके पर रसूल अल्लाह ने 100 ऊंटनियों की कुर्बानी दी थी। ये दोनों हदीसें सही बुखारी समेत तमाम सही हदीसों में हैं। इन दावों को दूसरी हदीसों से परखने पर कुर्बानी को लेकर विरोधाभास सामने आता है। जैसे कि कई हदीसों में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने परिवार के साथ बेहद गरीबी में जिंदगी गुजारी। एक हदीस के मुताबिक मोहम्मद के घर वालों के पास कभी शाम को 1 सेर यानी 4 किलो गेहूं गल्ला जमा नहीं रहा, हालांकि उनकी 9 बीवियां थीं। एक और हदीस में हजरत आयशा फरमाती हैं, हम नबी मोहम्मद के घर वाले ऐसे थे कि एक महीना आग नहीं जलाते थे, यानी कुछ नहीं पकाते थे। हमारी खुराक सिर्फ पानी और खजूर थी। एक और हदीस के मुताबिक हजरत आयशा ही फरमाती हैं, जब रसूल अल्लाह की वफात हुई तब आपकी ज़िरह यानी मिलिट्री आयरन ड्रेस एक यहूदी के पास 120 किलोग्राम जौ के बदले गिरवी थी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब नबी इतनी गुर्बत में थे तो वो हर साल 2 बकरों या 2 मेंढों की कुर्बानी कैसे करते थे। आखिरी हज से लौटने के 2 महीने बाद ही रसूल अल्लाह की वफात हो गई थी। हदीस के मुताबिक अपनी वफात के वक्त वो कर्जदार थे। ऐसे में हज के मौके पर 100 ऊंटनियों की कुर्बानी का दावा गले नहीं उतरता। अगर ये दावा सच है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हज में 100 ऊंटनियों की कुर्बानी करने वाले रसूल अल्लाह के सामने आखिर ऐसे हालात कैसे बन गए कि उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए अपनी ज़िरह गिरवी रखनी पड़ी। इन सवालों पर उलेमा बगले झांकने लगते हैं। जवाब देने के बजाय मुसलमानों का मुंह ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि इस्लाम में अकल का दखल हराम है। कुर्बानी पर इतना जोर क्यों? वैसे हज पर मेरी एक वीडियो पहले से है जिसमें हज की पूरी पोल खोली गई है, जिस पर लगभग 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। आप सभी को देखनी चाहिए, लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। कुरान में साफ तौर पर हाजियों के लिए कुर्बानी का हुक्म है, लेकिन उलेमाओं ने गैर हाजियों पर भी कुर्बानी फर्ज कर रखी है। इसकी वजह धार्मिक से ज्यादा आर्थिक है। उलेमाओं का आर्थिक। मुस्लिम संगठनों के लिए रमजान में ज़कात बटोरने के बाद कुर्बानी के जानवरों की खाल बटोरकर कमाई करने का बढ़िया मौका होता है। जानवरों की खाल के लिए मदरसा चलाने वाले संगठनों के बीच खूब खींचतान होती है। इसीलिए मस्जिद के इमामों से लेकर बड़े मुफ्ती और उलेमा ईद उल अज़हा के मौके पर सिर्फ कुर्बानी पर ही जोर देते हैं। खाल के चक्कर में ऐसे लोगों से भी कुर्बानी करा देते हैं जिनकी हैसियत भी नहीं होती। जितनी ज्यादा कुर्बानी होगी उतनी ही ज्यादा खालें मदरसों और उन्हें चलाने वाले संगठनों को मिलेंगी। अगर मुसलमान कुर्बानी का पैसा कहीं और खर्च करेंगे तो उन्हें सीधा नुकसान होगा। मुसलमानों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मोटे अंदाज के मुताबिक देश में ईद उल अज़हा पर 2 करोड़ से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी होती है। एक जानवर की औसत कीमत 10,000 माने तो मुसलमान समाज के बहैसियत लोग इस मौके पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं मौलवियों के लिए। ब्रेन वॉशिंग की वजह से एक परिवार में बढ़ चढ़कर कई कुर्बानियां होती हैं। करने वाले मुसलमान अगर अपनी कुर्बानी का आधा बजट गरीब मुसलमानों को रोजगार दिलाने, उनके लिए बेहतर एजुकेशन और हेल्थ सर्विस मुहैया कराने पर खर्च करें तो मुस्लिम समाज को अपने डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ा नुकसान जो हमें इसका दिखाई देता है वो ये है कि बकरा ईद पर छोटे छोटे बच्चों से बकरे के गले पर छुरी चलवाई जाती है। वो डरते हैं, चिल्लाते हैं, पर उनकी एक नहीं सुनी जाती। असल में मोमिन ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो इसे रिवाज कहते हैं।
हदीस और सुन्नतों का पालन करते हैं और इसे जायज भी ठहराते हैं। और इसका असर ये होता है कि इस हादसे में बच्चों के दिमाग में जानवरों की कुर्बानी को लेकर डर बैठ जाता है। बच्चे सहम जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि हमारे माँ बाप कितने जालिम हैं जो एक जानवर को काट डालते हैं, पर वो कुछ नहीं कह पाते। थोड़े बड़े होने पर उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है और फिर इस चीज को हर साल देखने पर उनके मन में कट्टरता को बढ़ावा मिलता है, जो कि बहुत गलत है। आखिर कोई भी त्योहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसका असली मकसद लोगों में खुशियां फैलाना होता है। पर असल में बकरा ईद पर मोमिन अपने ही घर में अपने खून से सने हाथों से किसी जानवर को तड़पा तड़पा कर मार कर त्योहार मनाते हैं। क्यों? पता नहीं कुछ लोग इस जुल्म को देख भी कैसे सकते हैं। और शायद यही रीजन है कि बकरा ईद पर कुछ मोमिन लोग खुद से जानवर नहीं काटते। उसके लिए वो कसाई को हायर करते हैं, क्योंकि वो जानवर को कटते हुए नहीं देख सकते। असल में वही इंसानियत भी है। अगर आप जानवर कटता हुआ नहीं देख सकते, अगर आपने कभी जानवर नहीं काटा है और आपके अंदर एक डर है, तो जो बात उस डर को तुम्हारे अंदर ला रही है वही इंसानियत है। एक समझदार इंसान एक बेजुबान को मारकर खुश नहीं हो सकता। अगर इसके बिना ही इस त्योहार को मनाने की इमेजिन करो तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मांस खाना और मांसाहारी होना गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये लोगों की अपनी इच्छा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब खाने के लिए इतनी चीजें हैं, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम किसी जानवर को ही काट कर क्यों खाएं? सऊदी अरब, जहां का ये त्योहार है, वहां पर उस वक्त में बंजर जमीन की वजह से कोई फल और सब्जी पैदा नहीं होती थी। इसलिए वहां के लोगों की मजबूरी थी कि उन्हें जानवरों के गोश्त पर डिपेंड रहना पड़ता था। पर आज के वक्त में तो हमारे पास खाने के हजारों ऑप्शन मौजूद हैं। तो आज हमें जरूरत ना होने पर जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। जानवरों को मारकर खुदा को खुश करना, इससे ज्यादा जंगली और पिछड़ी हुई सोच मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी हो सकती है। इतनी वाहियात प्रैक्टिस को त्योहार कहना भी त्योहार जैसे अच्छे शब्द के साथ नाइंसाफी है। आप एक जानवर की बलि देते हैं क्योंकि हजारों साल पहले एक आदमी ने बेवकूफी में अपने बेटे की बलि देने के लिए यह कदम उठाया, जिसे उस खुदा ने ऐसा करने को कहा था जो आज बड़े से बड़े युद्ध होने पर, जुल्म सितम होने पर, रेप होने पर भी मुड़कर नहीं देखता। फिर भी सदियों पहले लिखी हुई कहानियों पर भरोसा करके आप आज उसको दोहराने के लिए ये काम करते हो। भला इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? मैं जानता हूं बहुत सारे मॉडर्न मुस्लिम्स की नजर इस त्योहार पर नीची रहती है। उन्हें शर्म आती है इस जंगली प्रैक्टिस को अपने मजहब का हिस्सा बताते हुए। लेकिन इस्लाम में दीन की जबरदस्ती की वजह से अच्छे और पढ़े लिखे मुस्लिम्स चाहकर भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है। अगर आप इस्लाम ना भी छोड़ना चाहें तो इंसानियत की खातिर कम से कम अब इस गंदे त्योहार से तो पीछा छुड़ा ही लें। डरे नहीं, साफ कहें कि ये सुन्नत है, वाजिब नहीं। मेरा मन नहीं करता इसको फॉलो करने का तो नहीं करूंगा। हिम्मत दिखाइए। अगर इस वीडियो से केवल एक घर ऐसा हो पाता है जहां एक जानवर की जान बच जाए और एक मासूम बच्चे की इंसानियत बच जाए, तो मेरे लिए उतना ही काफी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मोमिनों को शेयर करें। शायद आपकी इस कोशिश से कुछ मासूम जानवर इस पागलपन से बच जाएं, जो एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ ये आपकी जिम्मेदारी भी है। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें, सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।